morning students. Once again welcome back in aptitude class. Today we will do aptitude chapter 4. Okay, so what is our chapter 4? Chapter 4 is alphabet test. Here is given some alphabets and you should make the word meaningful word. Okay, word नहीं meaningful, मतलब word तो आप कोई भी बना दोगे but meaningful word आपको बनाना है alphabets में. Okay, so take the correct combination of numbers so that if the letter are arranged accordingly, जैसे letters को हम numbers के according arrange करें, so a meaningful word is formed. तो एक meaningful word बने. Okay, मतलब हमें जो है numbers given है, यहाँ पे जो आपके letters हैं उन letters को number दे रखे हैं. Okay, 1 to 3 numberings दे रखी है और अकॉर्डिंग टू नंबर यू हैव टू अरेंज उनको. नंबर्स जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें उनको अरेंज करना है और फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो आपका मीनिंग, जिससे आपका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, हियर इज फर्स्ट, हियर इज गिवन के एंड बी ए. देयर इज 4 letters are given. Okay, letters which are there K and B A. Now there is K given 1 number and 2, B 3 and A 4. There is given 1 2 3 4 numbering. Okay, now here is given 4 options A B C D. So you should arrange according to the option. Options में जैसे आपके letter जो letters है means जो numbers है उनको letters के numbers को जो है नंबर्स मतलब आपको लेटर्स को नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको लेटर्स को अरेंज करना है और जो आपका मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. जैसे फर्स्ट में आपको ए ऑप्शन में दे रखा है 3 1 4 2. 3 क्या है आपका बी, 3 में आपका है बी. देन 1 के. ओके, then 4 A and then 2 N. There is given numbers 3 1 4 2. 3 1 4 2. So according to that we arrange the letter. 3 is B, 1 is K, 4 is A and 2 is N. Okay, now बैकन इज नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड. ऐसा कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास. ओके, अब नेक्स्ट बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं. बी में आपको दे रखा है एन, 2 दे रखा है यहाँ पे. 2 क्या है आपका, 2 किसकी नंबरिंग है एन. विच लेटर इज देयर एन. ओके, देन 1 के. देन नेक्स्ट 4 इज ए एंड नेक्स्ट 3 इज बी. Okay, next is C option. There is 2 is N, 3 B, 2 is N and 1 is K. So again यहाँ पे आपके पास 2 times 2 दे रखा है तो 2 टाइम n आ गया हमारे पास. ओके, 4 नहीं दे रखा है इसमें. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास डी ऑप्शन. डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है 3 4 2 1. 3 क्या है हमारा बी. ओके, देन 4 हमारा क्या है ए. देन 2 इज एन. ओके, नाउ 1 इज के. So now you will read these all the words. अब यहाँ पे हमने words बना लिए, but जो meaningful है that will be our correct answer. तो अब first में बैकन, this is not a word. नकाब, ये कोई word ही नहीं बन रहा हमारे पास. ना बैंक, कोई meaningful word है ही नहीं. अब last हमारा क्या है बैंक, BAN के बैंक. ये हमारा एक meaningful word बन रहा है. बैंक क्या होता है, बैंक you know very well. So bank is a meaningful word. So that means जो fourth option है D option वो हमारा meaningful है. So we will take D option. Okay, D is the correct answer. ऐसे ही आपको सभी पार्ट्स में करना है. All parts you
have to arrange according to the option. Then you will see that which one is the meaningful and that you have to tick. Okay. Now it's a second. सेकंड हम करते हैं इसमें. सेकंड में हमारे पास दे रखे हैं, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ. यहाँ पे हम अरेंज करेंगे इसको. ओके. सो नाउ in second you will see here is given A, M, H and U. These letters are given to you. Okay. And here is given numbering 1, 2, 3, 4, 5. 1 से 5 तक आपको नंबरिंग्स दे रखी है. ओके. फर्स्ट है यहाँ पे A. A में आपको दे रखा है 3, 2, 1, 4, 5. हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. 3 पे हमारा है H, देन 2 पे हमारा M, देन 1 A, देन 4 N and then 5 U. Now according to B option, 3 is H, then 5 U, 2 जो दे रखा है M को, 2 is M and 1 A, then 4 N. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास C ऑप्शन. C ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं. C में 4, 2, 1, 5, 3. 4 is N, 2 M, 1 A, then 5 U, then 3 H. Okay. Then next is 3, 1, 2, 4, 5. 3 is H, 2, 1 is A, 2 M, 4 N, 5 U. Now we will read these. Okay. So first you will see there is not meaning. Hamnu is not any word. Okay. The next is human. Human is a meaningful. Human क्या होता है? Human being. We all are human beings. Okay. जो men's, women's मतलब human beings. We all are human beings. So human is a meaningful word. Okay. So which option is that? That is B option. So that means B option is correct. आगे भी देखो आप, आगे भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा इसका. humanist यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा आपके पास. humanu. These are not meaningful. Only human. Human is meaningful from here. So that means B option is correct. Okay. Now after that, question 3. Okay. Question 3. In all part you have like this. So according to the option you will arrange and then you will see that which one is going to meaningful. आप वर्ड को भी देख के आप कर सकते हैं. इफ यू वांट्स टू चेक, आप जैसे यहाँ पे जो लेटर्स हैं उनको भी आप देख के आप बना सकते हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ से मीनिंगफुल बन रहा है. इन लेटर्स को देख के आप अरेंज कर सकते हैं इफ यू वांट्स टू डू, एंड दैट विल बी बेस्ट कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. आप इनको अपने मन से आगे पीछे अरेंज करोगे तो उसमें टाइम लगेगा. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज कर लो एंड विच वन इज करेक्ट, दैट इज योर आंसर. सो नाउ थर्ड इज RTALE. ओके. थर्ड में आपके पास क्या है? RTALE. There is given the same numbering 1 to 5. Okay. So first A option 4, 5, 1, 2, 3. So 4 is L, 5 is E. L, E. Then we have 1, 2, 3. So RTA. RTA. Okay. ये हो गया according to option A. Now option B 5, 3. 5 is E, 3 is A. E, A. Then 2, 1. 2, 1 TR. Then last is 4. 4 is L. Then next C option 4, 3, 2, 5, 1. So 4, 3 LA. LA. Then 4, 3, 2, 5, 1. 2 is T, 5 is E. TE.
and 1 is R. Then next D option 3, 5 A, E. A, E, 3, 5. Then 2, 1, 4. 2, 1, 2 is T, 1 is R. T, R. And last is 4, L. Now we will read these, which is the meaningful. There is given, so what we can make? Letter. Letter is not a word. Okay. Next में आपके पास क्या बन रहा है? Literal. Literal is not also a word. कोई डिक्शनरी में हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं होता. नेक्स्ट है लेटर. लेटर मतलब होता है क्या होता है? बाद में. ओके. सो लेटर तो हम यूज करते हैं कि मैं आपको बाद में बताऊंगी. सो आई विल टेल यू लेटर. सो लेटर इज अ मीनिंगफुल वर्ड. लेटर मतलब बाद में. थोड़ा लेट से लेटर बनता है आपका. लेट मतलब बाद में. लेटर मतलब बाद में. ओके. सो this is the meaningful. And then next is also literal. This is also not a word in dictionary. ये भी कोई ऐसा word नहीं है डिक्शनरी में. So only later is meaningful from there. So which is correct? C. C जो हमारा ऑप्शन है उससे हमारे पास meaningful word बन रहा है later. Okay. So that means C is the correct answer. Okay. So like this you have to do the rest part also. It's the 4, 5, 6, 7, 8. 8 questions are there in this chapter. Okay. So the rest question also you will arrange in your rough notebook like this, and then you will find the correct option. So your chapter 4 is finished. Now we will do chapter 5. Now chapter 5, that is ranking. Okay. Ranking means क्या होता है? Position. Okay. Whatever position is there, that we have to find in this chapter. So question 1 is there. Add a form collection. Form मतलब जैसे आप फॉर्म भरते हो किसी भी चीज का, तो at a form collection center 24 people are standing. How many people are standing? 24. Okay. In a row. Row मतलब क्या होता है? Line. Okay. One line में 24 people are standing. Now Pawan is 17th from the काउंटर. जो काउंटर है मतलब जैसे आपकी फीस सबमिट करने के लिए काउंटर है आपके स्कूल में, ऐसे ही फॉर्म कलेक्शन का काउंटर है. तो उसमें रो बनी हुई है, लाइन लगी हुई है. पवन इज 17th फ्रॉम द काउंटर. जो काउंटर से है 17th नंबर पे है पवन. ओके. 2 people ahead of पवन. ahead of पवन मतलब पवन के आगे से. walk away without depositing their form. जो पवन के आगे से जो 2 people है वो बगैर फॉर्म जमा कराए ही चले गए. आगे से उनको कुछ काम हो गया जैसे वो वहां से चले गए. ओके. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पवन फ्रॉम द एंड नाउ. तो अब आपको उसकी पोजीशन एंड से बतानी है. देखो उसके आगे से गए हैं तो इसका मतलब पोजीशन आगे से चेंज होगी, पीछे से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पीछे से तो सेम रहेगी. सो व्हेनेवर वी फाइंड द पोजीशन, तो हमारे पास मेथड होता है टोटल जो है. अब टोटल हमारे पास है 24. ओके. एंड 17th फ्रॉम द काउंटर मतलब ये आपके पास जैसे लाइन बनी हुई है. टोटल इसमें 24 है. ओके. अब वो 17th नंबर पे है. ये काउंटर है. काउंटर से 17th नंबर पे है. अब आपको बैक साइड से बताना है, तो बैक साइड से उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि जो आपको जो 2 people मूव किए हैं वो आगे उसके हेड मतलब उसके आगे से गए हैं, पीछे से नहीं गए हैं. तो इसका मतलब जो इसकी पोजीशन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? व्हेनेवर वी फाइंड द पोजीशन, सो टोटल माइनस पोजीशन. जो पोजीशन है आपकी फ्रंट से कितनी है? 17. सो माइनस 17. सो टोटल इज 24 माइनस 17. सो 24 माइनस 17 इज 7. 24 माइनस 17 is what? 7. Okay. But 7 is not our position. Why? Because when we minus 17, तो हमने पवन को भी, क्योंकि पवन की पोजीशन अब जैसे यहाँ पे है 17 नंबर पे पवन खड़ा हुआ है यहाँ पे. ओके. तो अब हमने जैसे 17 को माइनस किया, 24 में से हमने 17 को माइनस किया, तो हमने पवन को भी यहाँ से हटा दिया, पवन को भी यहाँ से निकाल दिया. लेकिन पवन की ही तो हम पोजीशन बता रहे हैं, तो अगर हमने 17 माइनस हम करते हैं
तो इसका मतलब हमने पवन को भी निकाल दिया वहां से। अब हमें पवन को वापस लाना है क्योंकि पवन की ही पोजीशन बतानी है। पवन के पीछे 7 जो लोग हैं वो पवन के पीछे खड़े हुए हैं, बट अब हमें पवन को भी काउंट करना है, पवन की पोजीशन बतानी है। सो वी विल डू +1, ओके। सो 7 + 1 is 8. So Pawan position is 8th, okay, from the back. अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि what is the position of Pawan from the end now? तो end से कोई डिफरेंस नहीं है, end से वही पोजीशन रहेगी उसकी। तो 24 - 17 + 1, okay, so that is 8th position. So Pawan position from the back is 8th. अब हमें बताना है what is his position from the counter. अब आपको काउंटर से बतानी है। तो देखो काउंटर से पहले उसकी 17 थी, अब 2 पीपल वहां से चले गए उसके आगे से, तो हम 2 को क्या करेंगे माइनस। सो 17 - 2 is 15. सो दैट मीन्स काउंटर से अब वो 15th नंबर पे है क्योंकि 2 पीपल्स जो है उसके आगे से मूव कर गए। सो वी विल राइट हियर 15th फ्रॉम द काउंटर, ओके, clear? So your first question is finished. So whenever you find the position, अब जब भी आप पोजीशन फाइंड करते हैं तो कैसे हमें फाइंड करनी है। रैंकिंग में हमारे पास रूल होता है कि जब हमें टोटल पता है और हमें लेफ्ट या राइट से वन साइड से पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल पता है, लेफ्ट या राइट साइड से वन साइड से आपको पोजीशन बता रखी है, तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है कि हम क्या करें, टोटल में से जो पोजीशन है उसको माइनस कर दें। लेफ्ट से पोजीशन दे रखी तो लेफ्ट से माइनस कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट से गिवन होगी तो राइट से पोजीशन पूछेंगे, राइट से गिवन है तो लेफ्ट से पोजीशन पूछी जाएगी, टॉप से पोजीशन गिवन है तो बॉटम से पूछेंगे, बॉटम से गिवन है तो टॉप से। यही रूल होता है हमारे पास। सो व्हेनेवर यू फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेकंड साइड, सो टोटल माइनस पोजीशन, जो लेफ्ट या राइट जो भी पोजीशन दे रखी है उसको माइनस करेंगे, देन +1, जैसे हमने इसमें किया, टोटल में से 17th नंबर पे था उसको माइनस किया, देन +1, ओके, क्योंकि हम जब पोजीशन को माइनस कर देते तो हम उस पर्सन को भी माइनस कर देते हैं। सो अगेन वी हैव टू डू +1, ओके। और अगर हमें पोजीशन बोथ साइड से दे रखी है, ये 2 ही रूल हमारे पास, कि 1 रूल तो क्या है कि टोटल और लेफ्ट या राइट से पोजीशन गिवन होगी, सेकंड साइड से आपसे पूछी जाएगी, उसमें तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस पोजीशन +1, वो सेकंड साइड से पोजीशन पता चल जाएगी आपको। सेकंड होती है हमारे पास कि आपको बोथ साइड से पोजीशन गिवन होती है, लेफ्ट से भी, जैसे कोई भी है, जैसे कपिल इज स्टैंडिंग 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 8th फ्रॉम द राइट, ओके, उसकी जो पोजीशन है वो 7th लेफ्ट से है, 8th राइट से है। तो उसमें आपको क्या, हाउ मेनी पीपल्स इन द रो, हाउ मेनी पर्सन इन द रो। तो टोटल पर्सन जब आपसे पूछे जाते हैं तो लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दे रखी है हम बोथ साइड से प्लस करेंगे एंड देन -1, क्योंकि बोथ साइड से जब हमने पवन की पोजीशन 7th लेफ्ट से है, पवन है, कपिल है, कोई भी नेम आपको गिवन है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से भी गिवन है, राइट से भी गिवन है, ओके। जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे, मेरी लेफ्ट से भी गिवन है, मेरी राइट से भी गिवन है, तो मैं 2 टाइम्स अगर हम टोटल करेंगे तो आई विल बी काउंट 2 टाइम्स, ओके। जैसे 7th मेरी लेफ्ट से है और 8th मेरी राइट से है, ठीक है। तो 7 + 8 15, बट आई काउंट 2 टाइम्स, मैं 7th नंबर पे भी काउंट होगी, उधर से 8th नंबर पे भी काउंट कर लिया, तो उसको 1 टाइम हमें माइनस करना है। 7 + 8 15, देन -1, सो दैट विल बी 14, टोटल पीपल्स उसमें होंगे 14। तो जब आपको टोटल फाइंड करना हो, लेफ्ट और राइट बोथ साइड से आपको पोजीशन दे रखी है और टोटल फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले तो बोथ साइड की पोजीशन को प्लस एंड देन -1। सो दिस इज द रूल ऑफ रैंकिंग। नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, अ पाइल हैज 35 नोटबुक्स। वन पाइल, पाइल मतलब क्या होता है, जो नोटबुक्स आप रखते हो कलेक्शन के लिए, जैसे चेकिंग के लिए क्लास में हम नोटबुक रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पाइल, ओके। तो जो नोटबुक की पाइल मतलब ऐसे नोटबुक्स रखी हुई है, सो अ पाइल हैज 35 नोटबुक्स, जो नोटबुक्स की पाइल है, जो पूरा बंडल है, उसमें 35 नोटबुक्स है उस बंडल में। सो राहुल्स नोटबुक इज 7th फ्रॉम द टॉप, जो राहुल की नोटबुक है वो ऊपर से 7th नंबर पे है, ओके, ऊपर से हम काउंट करते हैं तो दैट इज ऑन द 7th नंबर। सो व्हाट इज इट्स पोजीशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइल। अब आपको बॉटम से बतानी है, तो टोटल वही बात होगी, हमारे पास टोटल है 35, जैसे टोटल नोटबुक रखी हुई है 35,
ओके, अब जो राहुल की 7th नंबर पे है टॉप से, ये राहुल की नोटबुक रखी हुई है टॉप से। अब आपको उसकी पोजीशन बतानी है फ्रॉम द बॉटम। अब नीचे से बतानी, टोटल 35 है, टॉप से 7th नंबर पे है। अब बॉटम से कौन से नंबर पे होगी, तो हम कर देंगे -7। 35 - 7 28। बट 7 जब हमने माइनस किया तो हमने राहुल की नोटबुक को भी हटा दिया, बट हमें पोजीशन राहुल की नोटबुक की बतानी है। सो वी विल डू +1, राहुल की नोटबुक को वापस लेंगे +1। सो 28 + 1 29। सो इसकी पोजीशन हो जाएगी 29। सो विल राइट हियर 29। जो बॉटम से है वो 29 नंबर पे है राहुल की नोटबुक। ओके, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है इसी का। इफ द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट, अगर हम टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली को हटा दिया, किसी की भी हो उसको हमने हटा दिया, एंड बॉटम मोस्ट जो सबसे नीचे रखी है उसको भी हटा दिया, आर रिमूव्ड, उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव्ड, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हिज नोटबुक फ्रॉम टॉप ऑफ द पाइल एंड द बॉटम ऑफ द पाइल। अगर हमने ऊपर से वन नोटबुक को हटाया, नीचे से वन नोटबुक को हटा दिया, तो अब आपको टॉप से भी उसकी पोजीशन बतानी है, बॉटम से भी। जब 1 1 को हटाए तो 1 1 पोजीशन उसकी लेस हो जाएगी। अब टॉप से हमारी कितनी दे रखी है उसकी 7th, टॉप से 7th नंबर पे थी, यहाँ पे दे रखा आपको 7th नंबर पे। तो अब वन नोटबुक ऊपर से हट गई, तो अब वन स्टूडेंट की जैसे चेक होके मैम ने दे दी, तो कितने नंबर पे आ गई, 7th पे थी वो 6th नंबर पे आ जाएगी। सो टॉप से तो क्या होगी उसकी 6th नंबर पे। ओके, अब वन नोटबुक नीचे से निकाल ली, तो नीचे से उसकी 29th नंबर पे थी, बॉटम से 29th नंबर पे। अब हमने वन वहां से निकाल ली नीचे से, तो अब कौन से नंबर पे हो जाएगी, 28th। ओके, वन निकालने के बाद अब 28th नंबर पे आ गई। क्लियर, क्योंकि 1 1 पोजीशन लेस होगी। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन 3 4 5 भी करने, उनमें भी सेम यही है, आपसे वन साइड से पोजीशन गिवन है, सेकंड साइड से आपको फाइंड करनी, या फिर आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन गिवन है, टोटल फाइंड करना है। तो टोटल के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप लेफ्ट और राइट बोथ साइड से प्लस कर दो एंड देन -1, तो आपको टोटल नंबर पता चल जाएगा। क्लियर, so we'll do like this chapter number 5. So chapter 4 and 5 we will complete today. Okay, thank you.